نام ہے آپ سب کی سلامتی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ہم نکموں کو ناچیزوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور بے وجودوں کو وجود دیتا ہے ہاللیلویا کلام میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا جب ہم خداوند کی زندہ آواز کو سنتے ہیں جب ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں اور جب ہم اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں تو وہ ہماری روحانی برکت کا سبب بنتا ہے ہاللیلویا خداوند کے کلام پر توجہ کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں شکست نہیں کھاتا کیونکہ اسے پتہ دینے والا اس کا زندہ خدا ہے ہاللیلویا آج ہم یہاں پر کس لیے موجود ہیں آج ہم ایک گھر میں ایک خاندان میں ایک کلیسیا کی صورت میں یہاں پر جمع ہیں اس بات کی شکر گزاری کے لیے کہ خداوند نے اپنے بندہ کو سلامتی سے اپنے گھر میں واپس لایا خداوند نے ممکن کیا کہ جب اس کا بندہ اس ملک سے دوسرے ملک میں گیا تو وہاں پر خداوند نے اس کی محافظت اور جب خداوند کی مرضی ہوئی تو خداوند کا بندہ سلامتی سے اپنے باپ کے گھر میں واپس آیا ہاللیلویا اگر ہم خداوند کے بندہ یعقوب کے بارے میں دیکھیں تو جب وہ اپنے بھائی عیساؤ سے بھاگتا ہے تو وہ اپنے ماموں لابن کے گھر میں جاتا ہے راستے میں جو ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور اسے ایک سیڑھی نظر آتی ہے اور دیکھتا ہے کہ فرشتے اس سے اوپر جا رہے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں اور وہ جان جاتا ہے کہ یہ زندہ خدا کی طرف سے اور وہ وہاں پر منت مانگتا ہے کہ اے خداوند اگر تو میرے سفر کو مبارک کرے اور میں سلامتی سے اپنے باپ کے گھر میں واپس آؤں گا تو تو میرا خدا ہوگا وہ خداوند کے حضور منت مانگتا ہے اور کہتا ہے خداوند جو کچھ تو مجھے دے گا اس میں سے میں اپنا 10واں حصہ خداوند تجھے دوں یہ اس نے خداوند سے منت مانگی اور خداوند نے اس کی یہ دعا سنی وہ اپنے ماموں لابن کے گھر گیا وہاں پر خداوند نے اسے سرفراز کیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بڑا خاندان واپس آیا اور اس نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا ہاللیلویا آج جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند ہمیں دینے کی قدرت دیتا ہے ہاللیلویا اور خداوند جانتا ہے کہ آپ اس سے کیا مانگتے ہیں شکر گزاری ہم اپنے گھروں میں کیوں کرواتے ہیں میرے ساتھ دیکھیے گا زبور کی کتاب زبور 9 اور اس کی پہلی آیت خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اپنے پورے دل سے آدھے دل کے ساتھ نہیں کئی لوگ ہوتے ہیں منہ سے بات نکال لیتے ہیں کہ ہم نے شکر گزاری کروانی ہے ہم نے خداوند کی حضوری میں یہ دینا ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں بعد میں ان کا دل نہیں کرتا ادھی دیر دے نال تھوڑی دیر دے نال مایوسی دے نال خداوند دے حضور اپنی قربانیاں نو پیش کر دے پر کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے کلام میں اگر آپ دیکھیں تو خدا کہتا ہے زمین اور اس کی ساری معمولی میری انسان خدا کو کیا دے سکتا ہے کیا جو زندگی کی سانسیں ہیں یہ خدا نے دی آپ اچھے گھر میں رہتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ کے پاس زندگی کے وسائل ہیں کوئی انسان جو ہے اس دنیا میں رہ کر بہت اچھی لائف گزار کر جاتا ہے تو کیا وہ اس کی اپنی محنت سے یہ خداوند کے فضل سے لیکن شکر گزاری کی توفیق خدا کسی کسی کو دیتا ہے اور جو زندہ لوگ ہیں وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہاللیلویا جو مسیح میں زندہ کلام میں اگر ہم دیکھیں تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں رہتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا انسان جب تک اس دنیا میں زندہ ہے تب تک وہ اپنے مالک کو اپنے خداوند کو یاد کرتا ہے اس کی شکر
शुक्र गुजारी करता है, उसके कामों का बयान करता है। और जब हम अपने घर में लोगों को बुलाकर शुक्र गुजारी करवाते हैं तो हम बताते हैं कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये बड़ा काम किया। जब खुदावंद यीशु मसीह को मोज़ा करते थे ना किसी शख्स की ज़िंदगी में, तो वो जाता था और घोड़ा डाल देता था, मैंने उसको भी बताना है, उसको भी बताना है, उसको भी बताना है। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते थे कि तुम ये बात जो है किसी को ना बता दो, लेकिन वो शख्स उसकी ज़िंदगी में क्योंकि बड़ा काम ही इतना हुआ आता था कि वो जाकर खुदावंद के नाम की तमजीद करता था, वो उसके नाम की गवाही देता था कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। इंसान तब खुदावंद की तमजीद करता है, तब खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है जब उसे पता होता है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। जब इंसान के बस की बात ना हो और खुदा उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौजज़ा करे जो इंसान के बस की बात नहीं, तब वो इंसान खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। वो कहता है कि मैंने अपने मालिक को, अपने खुदावंद को याद करना है जिसने मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा काम किया। और शुक्रगुजारी वही करते हैं जो अपने खुदावंद को याद करते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं। अगर हम देखें तो ज़बूर 18 में लिखा है, इसलिए कि खुदावंद मैं कौमों के दरमियान तेरी शुक्रगुजारी और तेरे नाम की मदद सराई करूँगा। और ज़बूर 35 में लिखा है, मैं बड़े मजमा में तेरी शुक्रगुजारी करूँगा, मैं बहुत से लोगों में तेरी सिताइश करूँगा। आप शुक्रगुजारी खुदावंद की करते हैं, आप दुआ करते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन वो आपकी शख्सी शुक्रगुजारी होती है। जब आप किसी को अपने घर में बुलाते, अपने खुदावंद के आगे अपने बड़े कामों का कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में किए हैं बयान करते हैं, तो कलाम में लिखा है खुदावंद ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है। जब आप उसके हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी करते हैं तो आप खुदावंद की तमजीद करते हैं। और ये ज़बूर 50 में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है, खुदावंद कहता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसे मैं अपनी निजात दिखाऊंगा। कलाम हक में हमें एक वाक़या मिलता है, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में उन्हें 10 कोढ़ी मिलते हैं। कितने? 10 कोढ़ी मिलते हैं। वो खुदावंद से क्या दरख्वास्त करते हैं? वो खुदावंद से शिफा की इल्तिजा करते हैं। वो कहते हैं खुदावंद तू हमें शिफा दे, वो कहते हैं खुदावंद तू हमें पाक साफ कर। और क्या होता है? खुदावंद यीशु मसीह उन्हें कहते हैं जाकर अपने तई काहिन को दिखाओ। उस ज़माने में काहिन जो होता था, जब वो कहता था कि हाँ भाई ये बंदा क्लियर है, तब भी वो बंदा जो है वो कोढ़ से पाक साफ समझा जाता था। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया और वो जा रहे। कितने कोढ़ी हैं? 10। वो जा रहे और रास्ते में जाते जाते वो सब पाक और साफ हो गए। हालेलुया। वो जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक वापस आता है। जाते कितने हैं? 10। वापस कितने आते हैं? 1। अब इससे हमें सीखने की क्या बात मिलती है? वो शख्स जो एक कोढ़ी वापस आता है वो आके खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है, वो उसके कदमों को चूमता है, वो बार बार उसकी शुक्रगुजारी करता है। और जब वो उसके पास आता है तो खुदावंद पता उससे क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं क्या 10 ने शिफा नहीं पाई? ये कितने थे? 10। शिफा कितनों ने पाई? 10 ने। शिफा 10 ने पाई। कितनों ने पाई है? 10 के 10 जो है उन्होंने शिफा पाई है। वापिस शुक्रगुजारी के लिए कितने वापिस आए हैं? 1 वापिस आए। खुदा बरकतें, ब्लेसिंग, नेमते और हर तरह की बरकत हर शख्स की ज़िंदगी में रखता है। कलाम में लिखा है वो अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। ठीक है, वो दोनों को ब्लेस करता है। अगर आप खुदा को मानते हैं, अगर आप उसकी फरमाबरदारी में हैं, और अगर आप उसकी फरमाबरदारी में नहीं भी हैं, तो भी जब आप उससे मांगते हैं वो आपको मुहैया करता है। हालेलुया। लेकिन शुक्रगुजारी कौन करता है? 10 ने शिफा पाई, लेकिन वापस कितने आए? 1 वापस आया। और उससे 1 ने वापस
वापस आकर खुदावंद की शुक्रगुजारी। और मुफस्सिरीन बयान करते हैं, खुदा के खादम बयान करते हैं कि खुदा को आज भी उन लोगों की तलाश है जो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद सबको ब्लेसिंग देता है, सबको बरकत देता है, लेकिन वो चाहता है कि हर इंसान खुदावंद की शुक्रगुजारी करे। ये इंसान पर डिपेंडेड है, इंसान पर मबनी है कि वो अपने मालिक खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है या नहीं करता। कलाम हक में देखे रोमियो के खत में लिखा है, अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया लेकिन उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी ना की। हम जानते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम होता है, चाहे किसी का वीज़ा लगे, चाहे किसी को शिफा मिले, चाहे किसी की ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम हो, चाहे कोई पेपर्स में भी पास हो जाए, लेकिन वो जानता है कि जब मैंने खुदावंद से दुआ किया, खुदावंद ने मुझे मुहैया किया। लेकिन शुक्रगुजारी कितने करते हैं? ये हम पर डिपेंडेड है कि जब खुदा हमें ब्लेस करता है, जब खुदा हमें बरकत देता है, तो क्या हम उसकी तमजीद करते हैं? क्या हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं? ये हम पर डिपेंडेड है। और जब हम उस मालिक की शुक्रगुजारी करते हैं तो वो इस शुक्रगुजारी की कुर्बानियों से खुश होता है। आप खुदा को कुछ नहीं दे सकते। खुदा को इंसान क्या दे सकता है? खुदा ने इंसान को बनाया, खुदा ने इंसान को ब्लेस किया, ज़मीन और उसकी मामूली खुदावंद किया है। खुदा को इंसान कुछ नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन वो अपनी वफादारी अपने खुदा के साथ उसके हुजूर में इस तरह शो करता है जब हम उसके हुजूर अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को गुजराते हैं। और जब हम उस खुदावंद के आगे अपनी शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराते हैं तो खुदावंद अपने लोगों को और ज़्यादा ब्लेस करता है। हालेलुया। और एक शख्स है वो नाफरमान, उसने कभी खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं की। खुदावंद उसे बरकत देता है, खुदावंद उसे बरकत पर बरकत देता है, लेकिन वो खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करता। लेकिन एक वक्त आता है जब खुदा उसको सब कुछ छीन लेता है, तब उसे खुदा याद आता है। एक शख्स है जो सारी ब्लेसिंग होने के बाद भी हर एक शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजराता है। तो खुदा तूने मुझे अच्छी सेहत दी है, मैं तेरा शुक्र करता। खुदा तूने मुझे अच्छा घर दिया है, तूने मुझे अच्छी फैमिली दी है, तूने मुझे अच्छी जॉब दी है, मैं सब के लिए तेरा शुक्रगुजार। और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये सब मेरी अपनी मेहनत की वजह से। कभी लोगों को कहते सुना, मैंने बहुत मेहनत की। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरी अपनी कामयाबी की वजह से। खुदावंद जब बनी इस्राएल कौम को उनके मिस्र से निकाल कर लाया तो इस कृष्णा की किताब उसके 8 बाब में लिखा है, खुदावंद कहता है कि जब मैं तुम्हें उस मुल्क में, वादे के मुल्क में लेकर जाऊँ तो वहाँ जाकर ये ना कहना कि ये सारा कुछ जो है मेरी अपनी मेहनत से। खुदावंद ने 40 साल उन्हें बियाबान में जो है आसमान से फरिश्तों की खुराक खिलाई। 40 साल खुदावंद ने उन्हें मन खिलाया। और कलाम हक में लिखा है 40 साल वो बियाबान में रहे, ना उनके कपड़े फटे और ना उनकी जूतियाँ टूटी। क्या किसी इंसान के कपड़े 40 साल तक और जूतियाँ 40 साल तक एक जैसी रह सकती हैं? नहीं। इधर से जूता लाएं चाहे दूसरे दिन में टूट जाए, इधर से कपड़े लाएं चाहे 2 धुलाइयों के बाद कपड़े फट जाए, लेकिन खुदावंद ने 40 साल तक उन्हें बियाबान में संभाला है। और जब खुदावंद वादे के मुल्क में ले जाने को है तो खुदावंद कहता है कि जब तुम उस मुल्क में जाओ तो ये ना कहना कि ये मेरे अपने जोर से, अपनी कुव्वत से है, बल्कि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हें कुव्वत देता हूँ ताकि तुम कमा सको। मैंने तुम्हें कुव्वत दी, ये सारा जो जोर तुम्हें मिला है, ये सेहत तुम्हें मिली है, अच्छी जॉब तुम्हें मिली है, ये सारी मेरी जो है बदौलत। और जब खुदावंद ये कहता है कि ये मेरी वजह से है तो शुक्रगुजारी का मुस्तहिक कौन है? हमें किसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए? क्या हमें कहना चाहिए कि ये मेरे अपने जोर, ये मेरी अपनी ताकत से है? ये खुदावंद के फजल से मुमकिन है। और कलाम हक में लिखा है हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद चाहता है कि हम हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। और जब हम शुक्रगुजारी की कुर्बानियों को जानते हैं तो खुदावंद उनके एवज आसमान अपना अच्छा खजाना खोलकर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को किसी
किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आप देखें तो जिस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह ने सफर किया वो भी किसी की। अगर आप देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो शहाना उनका दाखिला हुआ यरूशलेम में, वो गधी का बच्चा जो है वो किसने दिलाया? उस शख्स का बाइबल में नाम ही लिखा। अगर आप देखें तो कलाम हक में हमें और बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन क्या वो अपनी बरकत के लिए करते? वो इसलिए नहीं करते कि हमने ये करना है तो ये जो है ये इसके इवज़ जो है हम खुदावंद के लिए कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी बरकत के लिए सब कुछ करते हैं। आज इंसान अगर खुदावंद के लिए कुछ करता है ना तो वो खुदावंद के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है। जो बीज आप आज बोते हैं खुदावंद कल को वो फलदार दरख्त बनाकर आपको वापस लौटाता है। हालेलुया। क्योंकि जैसे आप खुशी से देते हैं खुदावंद भी आपको खुशी से देता है, लेकिन अगर आप दुख के साथ देते हैं तो ऐसी कुर्बानियाँ खुदावंद कबूल नहीं करता। काइन और हाबिल दो भाई, कितने भाई थे? दो भाई, दोनों खुदावंद के लिए हदिया लाए, लेकिन काइन क्या लाया? वो अपने फलों की सब्जी जो है वो लाया। और हाबिल क्या लाया? हाबिल खुदावंद के लिए उसका जो सबसे खूबसूरत जो है बकरी का जो मेमने का बच्चा था वो लाया। और खुदावंद ने कौन सी कुर्बानी को कबूल किया? जो कुर्बानी खुशी से दी जाती। हाबिल की कुर्बानी को खुदावंद ने कबूल नहीं किया, काइन की कुर्बानी को। हाबिल की कुर्बानी को खुदावंद ने कबूल किया। हाबिल के बाद में क्या हुआ? अपना मुंह बिगाड़ा कि खुदावंद ने मेरी कुर्बानी को कबूल क्यों किया? लेकिन खुदावंद कहता है अगर तू नेकी करे तो क्या हो सकता है कि तेरे साथ कुछ बुरा हो। जब आप अपने हजूर अपने खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी के साथ कुर्बानियाँ गुजारते हैं तो ऐसी कुर्बानियों से खुदावंद खुश होता है। लेकिन अगर आप वही मजबूरी के साथ, थके दिल के साथ अगर आप ऐसी कुर्बानियाँ खुदावंद के हजूर गुजारेंगे तो ऐसी कुर्बानियों का आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं। आप कुर्बानी गुजारते हैं, आप खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन अगर आपका दिल ही जो है वही खुदावंद के साथ मुत्तफिक नहीं है तो ऐसी कुर्बानियों का आपको कोई फ़ायदा नहीं। आपको ऐसी कुर्बानियों का अजर खुदावंद की तरफ से नहीं मिलेगा, क्योंकि अजर देना खुदावंद का काम है। और कलाम में लिखा है वो दिलों और दिलों को जांचता है, वो देखता है कि मेरी बेटी का दिल, मेरे बेटे का दिल मेरे साथ कैसा, क्या वो मेरे साथ मुत्तफिक है, क्या वो मेरे साथ एक साथ होकर चल रहा है, क्या वो दिल से मेरी शुक्रगुजारी कर रहा है। जैसे दाऊद कहता है कि खुदावंद मैं पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करूँ, आधे दिल के साथ नहीं, ऐसे नहीं कि मायूसी के साथ, बल्कि खुदावंद के वो हुजूर आता है कैसे? खुशी के साथ, शादमानी के साथ। और दाऊद अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी। एक बच्चा है वो 17 साल का है, दाऊद तकरीबन 17 साल का था जब वो बादशाह मखसूस हुआ, और तकरीबन मेरे ख्याल से वो 30 साल का था जब वो बादशाह बना। मखसूस वो इतने साल पहले हुआ है, लेकिन इतने साल के बाद वो बादशाह बना है। इस दौरान उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात को देखी। साल उसकी जान लेने को था, उसने जंगें देखी, उसके घर में जो है उसकी बगावत हुई, लेकिन फिर भी वो खुदावंद के साथ एक दिल रहता है। वो पूरे अपने दिल के साथ अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है और खुदावंद उससे ब्लेस करता है। अगर आप देखें तो कलाम हक में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि जब सुलेमान बादशाह बना तो खुदा ने कहा कि तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे लिए ये करूँगा। अगर आप खुदावंद की ताबियादारी करते हैं, कलाम में लिखा है जब आप खुदावंद की नाफरमानी करते हैं तो खुदा तीसरी और चौथी पुश्त तक आपको बदला देता है, लेकिन जब आप उसकी फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा 1000 पुश्त तक आपको उनकी ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। कहाँ खुदावंद ने जहाँ पर लिखा है तो वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है, जब आप उसके हजूर आते हैं नाफरमानी करते हैं तो लिखा है तीसरी और चौथी पुश्त तक, लेकिन जब वो फरमाबरदारी करते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो आपको 1000 पुश्त तक उसका अजर देता है। हालेलुया। और आगे अगर हम कलाम हक में देखें, इस्तिशना की किताब के 28 बाब में आपको मिलेगा कि खुदावंद जो है वहाँ पर आपको फरमाबरदारी की बरकतें और नाफरमानी की सजाएं मिली। वहाँ पर लिखा है कि जब तू अपने घर में आएगा तब भी तू मुबारक होगा, जब तू अपने घर से जाएगा तब भी तू मुबारक होगा, तू
एक में मुबारक होगा तो अपने घर से मुबारक होगा। तेरे दुश्मन तुझसे लड़ने को एक रास्ते से आएंगे लेकिन वो 7 रास्तों से भागेंगे। तू एक अपने दुश्मन को तू अकेला तू 10 को रगेदेगा। ये फर्माबरदारी की ब्लेसिंग है। जब आप खुदावंद की फर्माबरदारी करते हैं, आप खुदावंद की तमजीद करते हैं, जब आप उसके नाम को जला देते हैं तो वो अपना आसमान जो है अपना अच्छा खजाना खोलता है, आपको ब्लेस करता है, आपके घराने को बरकत देता है और अपनी गवाही जो है आपकी ज़िंदगी में कायम करता है। हालेलुया। आज यहाँ बैठा कोई शख्स नहीं कह सकता कि मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने कोई बड़ा काम नहीं किया। खुदावंद हर शख्स की ज़िंदगी में बड़ा काम करता है। खुदावंद अपने नाम के लिए, अपने जलाल को जाहिर करने के लिए हर शख्स की ज़िंदगी में काम करता है, लेकिन ये उस शख्स पर डिपेंडेंट है कि वो इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है कि नहीं करता। आप जब उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी शुक्रगुजारी करता है और वो आने वाली मुसीबतों से भी आपको बचाता है। हालेलुया। ज़रूरत इस बात की है कि आज जब आप अपने खुदावंद के सुन चुके तो उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी दी हुई तमाम बरकतों के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसकी नेमतों के लिए, ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में अपने ऐसे ही बड़े कामों को ज़ाहिर करे और उसका जलाल आपकी ज़िंदगी से और आपके घरानों से ज़ाहिर करे। हालेलुया। आइए खुदावंद आज के कलाम से आपको बड़ी बरकत दें। थोड़ी देर के लिए सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। सब थोड़ी देर के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। जब खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो तुम यहाँ पर अपने वादा के मुताबिक मौजूद है, क्योंकि खुदावंद तुमने कहा जहाँ 2 या 3 है मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद होगा। बेशक खुदावंद तू वादों का सच्चा खुदा है, तेरे सब वादे आपके साथ हैं और खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है। मेरे जिंदा खुदा तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और खुदावंद तुझे जवाब देता है। तेरे सब वादे आपके साथ हैं। तूने कहा मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में और जमीन के इंतहाई हिस्से को तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा। खुदावंद ने कहा तू अपने मुंह को मेरे हजूर में खोल और मैं उसे भर दूंगा। आज खुदावंद से कह के खुदावंद हमारा इस घर में आना बाइस से बरकत हो। मेरे जिंदा खुदा खुदावंद जिन लोगों ने खुदावंद ये मुनासिब विचारा कि तूने अपने बंदा की जिंदगी में बड़े काम को किया है, कि खुदावंद तूने अपने बंदा को बैरून मुल्क में जितने खुदावंद को साल रात में घेरे और संभाले रखा और खुदावंद तू सलामती से अपने बंदा को अपने घर में लाया और जब खुदावंद वो दोबारा खुदावंद बैरून मुल्क जाने को है तो खुदावंद उसे संभालना, उसे घेरे रखना, उसकी सारी रास्ते रुकावटों को दूर करना, उसकी सारी परेशानियों को दूर करना, उसकी सारी ज़रूरत को खुदावंद अपने लाल और शाही खुदाने से मुहैया करके पूरा करना। खुदावंद एक एक झुकी जान अपने लिए दुआ करे कि खुदावंद आज जो हमने तेरी प्रेस्टिज की, जो तेरे जिंदा पाक कलाम को सुना, यह खुदावंद हमारी रूहानी तरबियत के लिए हो मेरे जिंदा खुदा। और खुदावंद हम तुझ में इसी तरह जड़ पकड़े और खुदावंद तुझ में तामीर होते जाए मेरे जिंदा खुदा। इसी तरह अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें जो हमारे लिए रोज़ अपना आसमान होता है। खुदा में लिखा वो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। बेशक खुदावंद तू वादों का सच्चा खुदा है। तू जब हम तुझे पुकारते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता है। तूने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और खुदावंद तू जानता है कि हम किन चीज़ों को मोहताज है, तो हमारे मांगने से पहले खुदावंद तुम्हें मुहैया कर देता है। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। इस तरह के तमाम प्यार के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे तो खुदा के जान को लेना, एक एक को छू, एक एक को ब्लेस करेंगे तो बड़ी बरकत है। इनके कारोबार पर, इनकी कमाई पर खुदा में तेरी बरकत हो और खुदा की शुक्रगुजारी की कुर्बानी जितना खुदा तेरे और जो में बख्तूर के मान पहुँचे और खुदा तो अपने लोगों को ले छू बड़ी बरकत है ब्लेस कर। और इसी तरह खुदा के तेरे बड़े बड़े कामों का, तेरे अजीब कामों का बयान करने वाले हो कि हमारे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। आइए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने अपने बंदा की बड़ी मुहाफ़त करना, जैसे खुदा को अपने बंदा को सलामती से लेकर आया। जब खुदा वो जाए इस मुल्क से दूसरे मुल्क तो खुदा ने उसकी बड़ी मुहाफ़त करना। तेरे पास रिश्ते खुदा ने उसकी बड़ी मुहाफ़त करे, क्योंकि खुदा तेरे पास कलाम में लिखा जो रिश्तों को हवाएं बना के इस्तेमाल करता है। मेरे खुदा खुदा अपने बंदा को, उसके घराने को खुदा मुझे और झूठी तमाम जानों को खुदा को बड़ी बरकत देना। आइए हम सब एक दिन हम सब मुतफिक होंगे आज की सारी इबादत के लिए दुआ करें। आइए हम सब एक दिन होंगे। मेहरबान जलाली आसमानी खुदा आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ हो मेरे जिंदा खुदा। आप जो जरूरियों पर तख्त नशीन है, फिर भी हम पाक सारों का ख्याल रखते हैं। इस बात के लिए
खुदा मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे जिंदा खुदा। आप जो अल्फा और ओमेगा, आप जो अव्वल और आखिर, आप जो इब्तिदा और इंतहा है मेरे जिंदा खुदा। आप जो सब कुछ जानते हैं मेरे जिंदा खुदा। कोई बात खुदा जी आपसे छुपी नहीं, कोई खुदा जी बात आपसे ढकी नहीं मेरे जिंदा खुदा। आप सब कुछ जानते हैं और सब बातों का इल्म रखते हैं मेरे जिंदा खुदा। आप हल मुश्किलात हैं मेरे जिंदा खुदा। आप अपने लोगों की बड़ी मदद सहायता करते हैं। इस बात के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ मेरे जिंदा खुदा। आपकी शुक्रगुजार खुदा जी आपकी सारी इबादत के लिए जो खुदा जी आपके लोगों ने खुदा जी बड़े खुदा जी दिल से आपके हज़ूर खुदा जी शुक्रगुजारी की कुर्बानी को गुजराना। तो खुदा आपकी बंदी होते हो, आपकी खात्मा होते हो, आपके दरख्वास्त करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। आज की ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी जिंदा खुदा आपके हज़ूर बखूर के मान पहुँचे। जो खुदा जी हमने आपके हज़ूर प्रस्तिश की, जो पाक कलाम का हिस्सा पढ़ा सुना गया, जिंदा खुदा आपके हज़ूर बखूर के मान पहुँचे मेरे जिंदा खुदा। लेकिन चूँकि जान के लिए खुदा जी आपकी बरकत, आपकी सलामती चाहते हैं मेरे जिंदा खुदा। और बिलखुसूस खुदा जी आपके बंदा के लिए खुदा जी आपके हज़ूर में दुआ करती हूँ मेरे जिंदा खुदा कि अपने बंदा को खुदा जी इमरान को खुदा जी बड़ी बरकत देना, ताकि खुदा जैसे आप सलामती से खुदा जी अपने बंदा को घर में वापस लाए अपने बाप के घर में। अब जब खुदा में जी आपका बंदा खुदा जी दोबारा खुदा में जी मेरे मुल्क जाने को है तो खुदा जी उसके रास्ते की सारी रुकावटों को जिंदा खुदा के पाक नाम का वसीला दूर करना और खुदा जी आमदा रफ्त में उसकी बड़ी मदद सहायता करना, क्योंकि खुदा जी आप परदेसियों की मुहाफ़ज़त करते हैं मेरे जिंदा खुदा। आपने कहा मैं आपसे लेकर हमेशा तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तो खुदा जी दुआ करके मेरे जिंदा खुदा अपने बंदा के साथ रहेगा सलामती से खुदा जब वो मेरे मुँह लग जाए तो अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला हो कि मेरे खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। इसी तरह खुदा जी कराने के तमाम अफराद के लिए दुआ करते हैं। एक एक जान को खुदा जी लेना छूना बड़ी बरकत देना और खुदा जी आज की सारी खुराक के लिए आपको बरकत चाहते मेरे जिंदा खुदा। जब ये खुराक खुदा जी हमारे बदन का हिस्सा बने, इसकी कुव्वत जिंदा खुदा के जलाल के लिए हो। और जैसे खुदा जी आपने 5 रोटियों को मछलियों में बरकत डाली और खुदा जी वो 5000 मर्दों को 4000 मर्दों से वाकई मिकदार में और खुदा जी एक बार 5 और एक बार 7 टोकरे खुदा जी रोटियों में भरे रहे। इसी तरह खुदा जी सारी खुदा जी खुराक पर आपकी बरकत हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, सबसे वाकिफ किताब में हो। और खुदा जी की जान को लेना चुना खुदा जी बड़ी बरकत देना और खुदा जितनी जाने ईमान के साथ सबको ब्लेस करना चुना और बड़ी बरकत देना। खुदा जी मालूम के शुरू से लेकर अभी तक आपने बड़ी मुआवजत की, काफ़ी शुक्रगुजार खुदा जी। नस्ल जी जो कुछ खुदा जी आपकी बात को जो से मांगा यीशु जी आपके पाक नाम कर से खुदा बाप से मांगूंगा यीशु के नाम से आमीन। जिस किसी ने भी सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदार को बख्शते हैं तुम्हारे कर्ज हम बख्श, हमें आज़माइश में पड़ा से बचा, क्योंकि बादशाहत तुझे हमेशा रहेगा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाजिर जमात और कुल मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। सभी को कहेंगे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा के नाम से आमीन। खुदा अल्लाह सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।